harder to change? Well, I think, as you can see from my remarks itself, the the diaspora obviously plays a very prominent role. The diaspora is a big asset, and therefore diaspora also deserves to be a very serious responsibility of the country and the government. It's not a simple matter because there are many sensitivities involved here. By definition, diaspora lives abroad, it lives in other countries. There are many complications that arise out of that. But overall, if you see, our effort in the last 10 years has been to connect more deeply with them, to keep that bond with the mother country strong, to encourage them to contribute in whatever way they are comfortable, to ensure that they have the facilities, the access, which they rightfully deserve, and sometimes there are distress situations because diaspora is in income terms, it's a very broad spectrum. There would be a big part of the diaspora are blue-collar workers who may often require direct support in moments of distress. So we actually have created a fund which has been very effective in dealing with individual cases. It could be people who lost their jobs and can't come back. Sometimes, people who unfortunately passed away, how do you bring the body back? Or sometimes even, women who want legal representation abroad. So I would say that degree of support and energy, attention they are getting is very, very high. But I also want to take this opportunity to plug something on my own behalf, okay? The Gulf, as you can see, is a region whose well-being is something of very deep interest for us. Deep interest for us because partly energy, proximity, the trade, but also because something like about 8 million Indians live in that region. So when we see frictions, when we see tensions, sometimes conflict, it is a matter of concern. Now, if Gulf countries are able to mitigate it, the frictions, if they're able to resolve their problems, I don't think anybody would take anything other than a positive view of it. Now, where that mediation process happens, who facilitates what, that's an interesting proposition. Because when we speak today about rebalancing in the world, it seems like a very academic concept. It's like, okay, your GDP went up by 2%, mine came down by 3%. But it translates itself really into behavior of states. So the fact, to me, it's not just that China, these two countries went to China and worked out some arrangement. We'll have to see, how that arrangement progresses. It's also the thinking in the region itself. That if you see at one level, you can say it says something about China, but it also says something about Saudi Arabia, maybe something about Iran as well. And so I would say it's a very good illustration of these changes that I have been trying to project. That, the day when there were dominant powers and they would be dominant. आज TAPMI जो कि मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का एक घटक संस्थान है और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता है, ने भारत सरकार के माननीय
भारत सरकार के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी को इनवाइट किया, जो अमृतकाल के भारत के विषय पर 29वां मतलब 29 लीडरशिप लेक्चर में प्रोग्राम का नाम रखा गया इंडिया इन द अमृतकाल। कहा कि मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के साथ 29वें TAPMI लीडरशिप लेक्चर का हिस्सा बनने सम्मान की बात है, जो शैक्षणिक संस्थान के हजारों से अधिक छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर जी ने परिसर के छात्र छात्राओं के साथ बातचीत की और TAPME के न्यू एकेडमी ब्लॉक के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। मणिपाल में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनुसंधान और नवाचार के लिए एक अत्यधिक प्रतिष्ठित संस्थान है। दुनिया भर में पिछले 75 वर्ष में उल्लेखनीय उपलब्धियों और चुनौतियों का काल रहा है, और अब हमें 25 साल आगे का हम देख रहे हैं, ताकि भारत की शताब्दी तक हम विकसित देश बनाने का प्रयास कर सकें। यह यहाँ के सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि 25 साल आपके लिए इतिहास समझाने के साल हैं। मैं यही कहूँगा कि 25 साल आपके लिए इतिहास को समझने के लिए साल हैं। अगले 25 सालों को देखें और खुद से पूछें कि आपका इंतजार क्या है। ट्रस्ट के अध्यक्ष, मणिपाल के एजुकेशन और MIT के अध्यक्ष डॉक्टर रंजन RP ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सबसे अच्छे राजनयिक में से एक रूप में से और फिर विदेश मंत्री के रूप में शानदार कैरियर बनाया है। ये छात्रों के लिए विदेश नीति पर उनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि एवं भारत के उज्ज्वल भविष्य को कैसे देखते हैं, ये एक शानदार उन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे डॉक्टर S जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक सभी कार्य कर रहे हैं। और इस अवसर पर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर MD वेंकटेशन ने कहा कि माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जैसे दिग्गज का स्वागत करना मेरे सम्मान की बात है। हमारे छात्र निश्चित रूप से उनके कैरियर के दौरान वर्षों के अनुभव का प्राप्त ज्ञान से लाभान्वित होंगे। भारत अगले दशकों में शासन करने के लिए तैयार है, और इस पर डॉक्टर जयशंकर जी ने व्यवहारिक शब्दों में सुनना वास्तव में खुशी की बात थी। डॉक्टर HS बल्ला, प्रोफेसर चांसलर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा कि शिक्षाविदों से परे S बल्ला, प्रोफेसर चांसलर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा कि शिक्षाविदों से परे छात्रों के लिए विविध व्यक्तियों और विशेषज्ञों से सुनना महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने विश्व दृष्टि को आकार देने और अपने निर्णयों के दृढ़ विश्वास लाने में मदद कर सके। मुझे यकीन है कि डॉक्टर S जयशंकर का अद्भुत भाषण हमारे छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक और विचारोत्तक होगा। डॉक्टर S जयशंकर ने भारत के डायस्पोरा के विषय में बताया। विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा भारतवंशियों का है। करीब 3 करोड़ की संख्या वाला यह डायस्पोरा विश्व के 28 देशों में फैला हुआ है। भारतीय समाज की ही ये तरह डायस्पोरा बहुधर्मीय है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी बहुजातीय भारत की लगभग सभी जातियां और बहुभाषी हैं। अगर डायस्पोरा की 3 श्रेणियां प्रमुख हैं, उत्तरी पुराना डायस्पोरा, श्रमिक डायस्पोरा और तिजारिया डायस्पोरा मानी जाए, तो भारतीय डायस्पोरा में तीनों श्रेणियों का निर्माण करती है। जिप्सी में भारतवंशी माने जाते हैं। सारी दुनिया में उनके विरुद्ध उत्पीड़न के प्रमाण बड़े पैमाने में उपलब्ध हैं। उपनिवेश और साम्राज्यवाद के कारण 19वीं सदी में बहुत बड़ी संख्या में भारतवंशियों को अनुबंध की शर्तों को बंधे हुए श्रमिकों के तौर पर ब्रिटिश उपनिवेशकों के बागनों के काम करने के लिए भेजा गया था। इस
डायस्पोरा का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे तिजोरिया श्रेणी के रूप में रखा गया है। इसके तहत भारतवंशी आते हैं और अपने व्यापार और ब्याज संकट और योग्यता के आधार पर विदेशों के बेहतर अवसरों में की तलाश में गए हैं थे। इनमें से शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक और कारीगर और डॉक्टर और इंजीनियर व्यापारियों को रखा जा सकता है। भारतीय डायस्पोरा न केवल सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व के दूसरे डायस्पोरा समाजों से अधिक उपनिवेश विरोधी आंदोलन का इतिहास भी गवाह है कि दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों के बीच ही गांधी के अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह के सबसे पहले प्रयोग किए गए थे। श्रीलंका के हिंसक अलगवादी आंदोलन चलाने वाले इलम संगठन भारतवंशी तमिलों का ही है। उत्तर अमेरिका में भारत में चलने वाला वामपंथी और दक्षिणपंथी में ये हिंदुवादी कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। तो ये दोनों तरह की राजनीतिकों से जुड़े प्रवासी भारतीयों हिंदू धर्म के बहुमंडलीय की प्रक्रिया और उनके माध्यम से आने वाले परिवर्तनों की जिम्मेदारी माने जाते हैं। भारत सरकार इस डायस्पोरा समाज को दो तकनीकी श्रेणियों में रखकर परिभाषित करती है। अनिवासी भारतीय या प्रवासी मतलब NRI, भारतीय मूल व्यक्ति PIO, नॉन रेजिडेंट का मतलब है कि भारतीय प्रवासी जो भारतवंशी हैं तो हैं पर भारत में के बाहर पैदा हुआ है, स्थायी रूप से बाहर ही रहता है, वे अपनी निवास के देश का नागरिक है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑफ ऑरेंज का मतलब है कि PIO का मतलब है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कम से कम 4 पीढ़ियों में विदेशों में रहने वाला व्यक्ति को PIO का दर्जा मिला है। PIO कार्ड रखने वाले पुरुष की पत्नी वह कार्ड रख सकती है भले ही वे भारतीय मूल की न हो। PIO कार्ड धारकों पर वे पाबंदी भी नहीं रखती है जो विदेशी नागरिकों पर लगाई जाती है, यानी उन्हें वीज़ा और काम करने के लिए परमिट पर कोई रोक नहीं है, न ही उन पर किसी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध है। जनवरी 2006 से भारत सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI की स्कीम शुरू की है। इसके तहत प्रवासियों को आज़ादी के बाद पहली बार NRI और PIO की सीमित किस्म की दोहरी नागरिकता को देने का प्रावधान किया गया है। समझा जाता है कि धीरे धीरे OCI स्कीमों की जगह ले लेगी। इतिहास को देखा जाए तो रोमनी